प्रोग्राम करते हुए ना मैं ज़रा थोड़ा सा थक गया था, तो मैंने कहा यार चलो थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। यार ये किस तरह है भाई किन्नू? किन्नू 150 रुपये दर्जन, 150 रुपये दर्जन? फ्रूटा 150 रुपये दर्जन है, और वो किस तरह है? 200 रुपये दर्जन। 200 रुपये दर्जन। यार चेक करें किन्नू, किन्नू बड़े खूबसूरत है, लेकिन मसला ये है खूबसूरत चीज़ें मेरे और आपकी जैसी आवाम की पहुंच से बहुत बाहर है भाई। मैं तो नहीं खरीद सकता यार, इतने महंगे। महंगे ने महंगे ने यार, गरीब बंदा किਵੇਂ ਲਏਗਾ? सही हो गया, ये भी महंगे ने तो सस्ते ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਐ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ, 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ। ਕਿਲੋ ਨੇ ਵਿਕਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਸਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਪੀਟੀਆਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਸੜਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦਾ? ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ? ਫਰੂਟ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? 1 ਮਿੰਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ 94 ਰੁਪਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ, 65 ਰੁਪਏ। 65 ਰੁਪਏ ਸੀ? 65 ਰੁਪਏ। ਚਲੋ 65 ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 1 ਮਿੰਟ, ਨੂਨ ਲੀਗ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀ, ਤੇਲ 300 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ? ਉਹ ਸਾਜੀ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਟੱਪਿਆ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 15-20 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਜ਼ਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਸਨ ਕਿੰਦੇ ਦੇ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ? ਕੋ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ? ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੜੀ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ? ਘੜੀ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਹੈ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ? ਪੱਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਲੈਣਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਲੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ। ਮੈਟਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ? ਲੋਕਲ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਟਕ ਤੋਂ, 30 ਰੁਪਏ ਜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਚੰਗਾ? ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਮੋਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਾਣੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਾਣੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ? ਮੀਆਂ, ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਮੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਮੀਆਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 3-3 3.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, 2-2 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ 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 ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਟੈਕਸ ਖਾਲੀ ਉਹ ਜੇਬ ਉਹਦੀ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ? 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਬਲਬ ਬਲਦੇ ਸੀ, 35-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ। 35-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ 2 ਬਲਬਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। नाज़रीन करामी, मैं ना एक चीज़ के ऊपर हैरान परेशान हूँ। हम लोग फैक्ट्स पे बात नहीं करते, अंधा एतमाद है हमारे अंदर और हम अंधे होकर सपोर्ट करते हैं सियासी पार्टीज़ को। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा कि नून लीग को सपोर्ट करें, ये बात नहीं कर रहा कि पीटीआई को सपोर्ट करें, मैं ये भी बात नहीं कर रहा कि जमात इस्लामी को बगैर सोचे समझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है भाई आप अपनी स्टडी मुकम्मल करें, आपको पता हो कौन सी पार्टी ने क्या किया है, कितना काम किया है, ताकि आपके पास फैक्ट्स हों। मोटरसाइकिल पे बैठे हो थके हारे की गल? मेरे गोडियां ਨੂੰ तकलीफ है जी। आए चंदा हथ विखाओ, ना बुजुर्ग ने यार, अल्लाह ताला इन्हां दी हयाती करे। वोट किहनूं देना? जमात इस्लामी ਨੂੰ। जमात इस्लामी ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਜੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾ ਜਮਾਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਪਹਿਲੇ ਜਮਾਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੀ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੇੜਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣੇ ਆ ਜਾਂ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ, ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗੀ। ਇਹ ਜਮਾਤ बहुत अच्छी लगी है ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਤ से ਅਸੀਂ जमात इस्लामी ਨੂੰ वोट पाना। सुन रहे हैं ना आप, मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। आज ना मुझे मज़ा आ रहा है बातचीत करने का, क्योंकि आज मैं ज़रा खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे दिल के बहुत सारे ऐसे ना दर्द हैं जो बाहर आ रहे हैं खुल के। तो आ जाएं भाई। लाला क्या हाल चाल है? लाला मैं अंदर आ जाऊँ तुम्हारे पास? क्या हाल चाल है मेरे भाई के? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, ठीक ठाक। ज़बरदस्त। सर्दियों के दिन तो आवाम वैसे ही ड्राई फ्रूट खाती हैं। शुक्र है हमारा सर्दी गर्मी में होता है। किस सियासी पार्टी को वोट देना? किसको वोट देना? इंशाल्लाह इस दफ़ा तराजू को देंगे, जमात इस्लामी को। हाँ जी। कोई ख़ास वजह? हाँ जी, कोई ख़ास वजह? बस इस दफ़ा दिल इधर कर रहा है। इससे पहले किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करते थे? सारे को दिए सर, शेर को भी दिया, ये भी दिया, सबको दिया। इस दफ़ा इंशाल्लाह। पिछली बार किस पार्टी को वोट दिया था? पिछले दफ़ा मैंने नहीं डाला, वजह? बस दिल नहीं माना। आपके हल्के की अगर बात करता हूँ, दुकान है, दुकानदारी है आपकी, लोगों को देखते होंगे, चलते फिरते लोगों को देखना, निज़ाम देखना, क्योंकि आपके सामने सब कुछ हो रहा है। मुझे ये बताएं, हल्के के अंदर इन 2-4 सालों के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो बेहतरी की जानिब गई हो? वल्लाह वाले में ऐसे, लेकिन इस दफ़ा हमारा दिल जो है ना, ये कहता है कि जमात इस्लामी को भी दे दें जमात इस्लामी को भी आजमा के देख लें इंशाल्लाह। इस दफ़ा जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, आम सियासतदानों की निस्बत काफ़ी हद तक डिफरेंस है, मतलब कि अपने ज़ाती घर नहीं हैं, आज जिस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी को बुरा नहीं कहेंगे, सब हमारे लिए अच्छे हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे शब मेराज पे, तो कुछ चीज़ें ऊपर से देखी आ रही थी, कुछ चीज़ें नीचे से जा रही थी। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कि जो ऊपर से आ रही ये क्या है, जो नीचे से जा रही ये क्या है? तो फरमाया अल्लाह के रसूल, जो ऊपर से आ रहे हैं ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, और जो नीचे से आ रहे हैं ये अवाम के जैसे अमाल करेंगे वैसे फ़ैसले आएंगे, जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान आएंगे। तो हमारे लिए सब अच्छे हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। इन्होंने बात ही ख़त्म कर दी यहाँ पे। वो कहते हैं ना कि जैसे आपके अमाल होंगे वैसे हुक्मरान आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, और ये बात सच है। तो मेरा ख्याल है वाकई हम लोगों के जो अमाल है ना वो ठीक नहीं है, हम लोगों का इंतखाब ठीक नहीं है। तराजू के अंदर तोलते हुए दयानतदारी से काम हम नहीं करते, दूध के अंदर मिलावट हम करते हैं, मुनाफकत के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोलकर मालो मत्ता हम लोगों को चपेकते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम पर हुक्मरान अच्छे मुसल्लत किए जाएं। तो ऐसा नहीं होता भाई, जो भरोगे, जो बीज बोओगे, उसका दरख्त भी तो निकलेगा ना, फिर उसी के साए तले आना है तुमने। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ जी बिल्कुल। कौन से इलाके से हैं? हम मोमंद एजेंसी से हैं। मतलब कि लाहौर का इलाका नहीं है ये? नहीं, हमारा तो इधर पैदाइश सब हमारे इधर ही है। आप लोगों का सारा सीन वगैरह लाहौर में है? हाँ जी, सब इधर पैदाइश हमारे 50 साल से ज़्यादा हो गई। कोई मोहब्बत भरा पैगाम दो मेरी ऑडियंस को पश्तो में। क्या दूँ बस? कोई मोहब्बत भरा पैगाम, इतने प्यारे आदमी हो यार, इतना नूर है तुम्हारे चेहरे पे। बस हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उसको लाए जो मुल्क के लिए अच्छा हो, जो सब के लिए, गरीबों के लिए अच्छा हो, सब के लिए अच्छा हो। हम तो उसके लिए दुआएं करेंगे। सादा दिली देखें ज़रा खान साहब की, कि इन्होंने किसी को बुरा भला नहीं कहा, सबके हक़ के अंदर ही बात की। अच्छी बात है, होना भी इसी तरह से चाहिए कि आप लोगों को लोगों की बका के लिए बोलना चाहिए। डज़न्ट मैटर कि आपकी बका के लिए काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, भाई आप दिल से अच्छा जाने, दिल के अंदर बुग़्ज़ ना पालें, ये सबसे बड़ी बात है। मज़ीद लोगों से जो बातचीत का सिलसिला है उसको जारी और सारी रखते हैं। नाज़रीन करामी, मैं थक गया हूँ चलते चलते, रिक्शा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है मुझे घर चले जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। लड़के क्या नाम है? जी अदनान गोशा मेरा नाम है। यार मुझे मेरे दफ्तर ही छोड़ दो, PIA रोड। जिधर कहेंगे सर छोड़ देंगे। पैसे बताओ। पैसे जो मुनासिब है दे देना आप। जो मुनासिब है। फिर भी कितने पैसे लोगे बताओ? पी रोड पे कहाँ पे करके जाएंगे आप? PIA रोड पे यार, एस्पायर टावर जाना है हमें। बनता तो वैसे ज़्यादा है, लेकिन हमारा नजायज़ मांगने को दिल नहीं करता। आप 100 रुपीज़ दे देना। 100 रुपये में? यस। 100 रुपये में आजकल कुछ आता नहीं है, तुम 100 रुपये में PIA रोड छोड़ रहे हो। सर जो बंदा नीयत करता ना कि मैंने हक लाल खाना, उसके लिए बहुत कुछ है। 100 रुपया
इन ड्राइव की एप्लीकेशन चल रही है तुम्हारे पास, इन ड्राइव के ऊपर काम करते हो? मैं जी बिल्कुल ऑनलाइन काम करता हूँ। यार कितने पैसे कमा लेते हो महीने के? देखिए जी, जो इस वक्त हालात हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो हमारी जो इनकम है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इस कदर पिसे हुए हैं महंगाई की चक्की में। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हमारी साबका हुकूमतें रही हैं ये इसकी ज़िम्मेदार हैं। आज हम बच्चों का दूध लेके जाते हैं तो उनके लिए हमारे पास कपड़े के लिए पैसे नहीं हैं, अगर कपड़े लेते हैं तो जूते के लिए पैसे नहीं हैं। तो कभी कभार बच्चे स्कूल जाते हैं? जी बच्चे स्कूल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को तो जो कमाई घर किराए का अपना है? जी घर मेरा अपना है। घर अपना है, चलो ये अल्लाह का शुक्र है। आजकल के दौर के अंदर अपना घर जो है वो होना बहुत बड़ी नेमत है। मुझे ये बताओ, आगे रमज़ान आ रहा है कुछ अरसे के अंदर, रमज़ानों के अंदर सब बच्चों का दिल करता है रोज़ा, याद रखना रोज़ा हमारा नहीं है, रोज़ा तो मासूम जानों का होता है, क्योंकि दस्तरखान के ऊपर लगने वाला जो खुशियाँ होती हैं ना वो बच्चे बिखेरते हैं। तो क्या लगता है रमज़ानों के अंदर क्या सूरत हाल रहेगी? सर देखिए, हम तो एक समोसा एक खजूर के साथ ही बस यही इफ्तार कर लोगे? इफ्तार कर लेंगे। वोट किसको दिया था पिछली बार? देखिए जी, पिछली बार तो जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब हम उन चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को नहीं देंगे। किसको दिया था बताओ? अरे बस अब मैं क्या करूँ, उसका नाम भी हम लेंगे तो हमारा ये रिक्शा, मैं भी गैप हो जाऊँगा, आपको नज़र नहीं आऊँगा। ठीक है। और दूसरी बात देखें, उसको भी हमने एक मौका दिया था कि जी कुछ बेहतरी के ख्वाब दिखाए थे उसने, लेकिन वो बेहतरी के ख्वाब उसने पूरे नहीं किए। अवाम के साथ उसने धोखा किया और मैं समझता हूँ कि उसने जो तसल्लियाँ थी, झूठी तसल्लियाँ थी, झूठे ख्वाब थे, झूठे वादे थे। ठीक है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी अभी भी पूरे हैं। मैं कहता हूँ कि 1 लाख नौकरियाँ वो किधर हैं? बेघरों को घर दिए हैं वो किधर हैं? ठीक है। दस्तरखान लगाए हैं वो किधर हैं? कोई एक काम बता देना कि वो लगाए हैं उसने, वो पूरे किए हों। वोट किसका है इस दफ़ा? इस दफ़ा जी इंशाल्लाह हम जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जमात इस्लामी का जो कैंडिडेट है वो हमारे इस इलाके का है। अभी देखें ये PP 163 का ये इलाका है, यहाँ पे जमात इस्लामी के वकास अहमद बाटवी मौजूद हैं, और यहाँ से PP 163 में जो पीपल्स पार्टी के जो नसीबुल आल हैं वो भी मौजूद हैं। ठीक है। और जो उन्हीं की तरफ से मियाँ साहब, मियाँ इमरान साहब भी मौजूद हैं, लेकिन ना तो हम मियाँ इमरान को जानते हैं कि वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है। और बिलावल भुट्टो साहब तो कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी गड़ी शो, तो कभी कहीं, लेकिन उनको वोट दे भी दें या किसी और पार्टी को हम देते हैं, वो जीतने के बाद क्या गारंटी कि हमें वो मिल भी सकेंगे? कोई पार्टी अगर तुम्हें कहती है यार मेरी पार्टी को वोट दो, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, या मेरी पार्टी को वोट दो तो तुम्हें मोटरसाइकिल मिल जाएगा, भाई हम रिक्शा नया ले देंगे, भाई रिक्शा दें या जो मर्जी दें, हम जमात इस्लामी को वोट देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। क्योंकि हम वोट इसलिए नहीं देंगे कि वो हमारे नजायज़ काम करेंगे। हम नजायज़ काम के लिए नहीं कहते, हम हक़ की बात करने के लिए, हम हमारे हक़ का हकूक़ बच्चों को मिलने चाहिए। और वकास भाट साहब इस हलके में हैं और इनका घर भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। हमारा वो जीतने के बाद भी काम करेंगे। हम जो तवक्को उनसे रखते हैं मुल्क के इस इलाके की बेहतरी के लिए, वो इंशाल्लाह हमारे टैक्स के पैसे की रखवाली भी करेंगे, और असम्बली में पहुँचने के बाद हमारे हर काम की वो जो ना वो ज़मानत देंगे कि हम वो इस इलाके पर डिलीवर करेंगे। सुबह से कितनी दिहाड़ी लगी है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 सवारियाँ उतार ली हैं। 200-300 उधार लिए हैं? 200-300 सवारियाँ उतारी हैं। अच्छा 200-300 उधार लिए जी। नाज़रीन करामी, दिल कुड़ता है कभी कभी अपने शहरियों का हाल देख के, कि इस तरह खड़े होते हैं रोज़गार की आस में, घर से निकलते हैं ना जब, तो बच्चों को आस दिलवा कर निकलते हैं कि भाई बाबा रात को घर आएंगे ना तो हाथ के अंदर शॉपर होगा, फल आ रहे हैं, किन्नुओं का मौसम है। किसके बच्चों का दिल नहीं करता यार, और किस बाप का दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चों के लिए घर जाते हुए कोई सौगात लेकर जाए। मैं बाप नहीं हूँ अभी, लेकिन ना होने के बावजूद मेरे जहन के अंदर कभी कभार ये ख्याल आता है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता मैं अपने बच्चों की कोई ख्वाहिश पूरी ना कर सका तो मेरे लिए तो डूब मरने का मकाम है। मज़ीद लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी और सारी रखता हूँ। क्या नाम है लड़के? सद्दाम अली, मलक हो? राजपूत भट्टी राजपूत भट्टी हो जी। मेरा वैसे वाल नहीं पड़ा इन लोगों से। वोट किसको देना है? नून लीग। जनाब आपका क्या नाम है? रमीज़ राजा। रमीज़ साहब वोट किसका है? वोट इंशाल्लाह इस बार जमात इस्लामी का। पहले तो मैं चीफ कोऑर्डिनेटर था PTI का,
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इंशाल्लाह जमात इस्लामी को वोट देंगे। मतलब कि दोनों हजरात मुख्तलिफ पार्टियों से साथ जुड़ के खड़े हुए हैं, मोहब्बत नज़र आ रही है। भाई नून लीग को वोट क्यों देना है तुमने? भाई नून लीग के दौर में बिज़नेस सारा हमने किया है, पीटीआई के दौर में बड़ा बिज़नेस सारा चौपट हो गया बिल्कुल। रुपये का काम मोहल्लों में नहीं किया, ना गटर साफ़ करवाए, ना लाइटें लगवाई, ना रोड बनवाए, ना हमारे बिज़नेस धर्म भरम हो गया हमारा बिज़नेस। दियो जी जवाब। बात यह है कि मियाँ साहब की जो सोच है वो ही उनकी वर्करों की सोच है, क्योंकि इनकी सोच गटरों से शुरू होती है, गटरों पे ख़त्म हो जाती है। गटरों की सोच सफाई होगी तो उसमें खुदाई होगी ना, जब सफाई नहीं होगी तो कैसे खुदाई होगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे लीडर होंगे, लीडर आएंगे गटर साफ करेंगे तो सफाई होगी। लीडर ही गटर साफ करने वाले हैं, उनको तो शऊर है ही नहीं है, क्योंकि गटरों पे तो हमें रखा है उन्होंने। उनको पता है अगर इस अवाम को शऊर आ गया तो हमारा जुली बिस्तरा उठा के लंदन से वापसी का जुली बिस्तरा नहीं होगा। ओ भाई नहीं, बस कर दो। हमने देखा है कि क्या काम करवाया, बताएं पीटीआई ने क्या काम मैं करवाया? आपको गिनवाऊंगा, पीटीआई के काम भी गिनवाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह जमात इस्लामी के काम भी गिनवाऊंगा, ठीक है। आप मुझे मुस्लिम लीग नून के काम गिनवाएं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको काम बनवाऊँ। गिनवाओ। आप देख ही रहे हैं क्या काम नहीं, क्या नहीं, पूरा आप लाहौर देखे कितना साफ सुथरा बनाया उन्होंने, क्या नहीं किया। ये बहस तो छोड़े ना आपने वोट का देख लिया, नून लीग का वोट इंशाल्लाह नून लीग विन होगी। लाहौर में क्या किया जी मियाँ साहब ने? बहुत काम किए हुए हैं। पाकिस्तान की स्टील मिल जो कि लाखों लोगों को रोजगार देती थी, पाकिस्तान की स्टील मिल लाखों लोगों को रोजगार देती थी, वो आज बंद है। उसमें भी सरिया ही बनता था। इनकी इत्तेफाक मिल से सैकड़ों मिलें बन गई। भाई कौन सी है इनके पास गिद्दड़ सिंगी, हमें भी बताओ। उनसे पूछ लेना भाई, जब आ जाएंगे भाई तो आप देख लेना। आप उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो ना, मैं भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ भाई, एक हम तो पार्टी वोट देते हैं का। नून मैं आपको लीग अपनी को, पार्टी का, पता। अब मैं जिस पार्टी में उसके मंशूर बताऊंगा आपको, ठीक है। आप। मैं आपको फिर आपने वादा करना कि आप उसे वोट देंगे, आप चोर हमारा को वोट है छोड़ेंगे। नून लीग को भाई। नहीं ये तो बात नहीं ना, या तो मुझे आप अपनी तरफ कायल करें, मैं आपको वोट दूंगा, ऐसे नहीं होता। या तो मुझे आप अपनी तरफ कायल करें, मैं आपको वोट दूंगा। ये मजमा है, ये सारा गवाह इस चीज़ का हलफ उठाऊंगा। आप अपनी तरफ कायल करें, मैं आपको वोट दूंगा। भाई जब आप देख रहे हैं कि आपकी सड़कें, आपके रास्ते सीधे हैं, आपका और यार बिजनेस बाहर सीधा में है। चली गई सड़कें, मेरे बच्चों को स्कूल में फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ जी, तो मियां बच्चों शहबाज को ने- खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं मियां है, शहबाज ने बिजली के स्कूलों में बिल कितने तारने काम के लिए करवाए? मेरे पास पैसे नहीं है, तो गैस के बिल तारने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, जो कि आ ही नहीं रही। किस दौर में हुआ है वो खराब? हाँ ये आपके दौर में हमारे दौर में कहा। भाई ये 16 महीने वजीर आजम कौन था? ये तो निगरान हुकूमत है ना। 16 महीने का वजीर आजम कौन था? तो निगरान हुकूमत के अंदर वजीर आजम की कुर्सी इनके पास नहीं थी भाई, क्या हो गया तुम्हें? भाई मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो इनके पास प्रॉपर हुकूमत रही है पीटीआई की। उन्हें डिग्री हुकूमत की थी। हाँ जी। भाई 16 महीने। जो किसने कहा था इनको ग्रीक हुकूमत उठाओ, किसने कहा था? आओ जी तुसी आओ आगे, की कह रहे हो? कर रहे गल किसने कहा था इन्हें कि हुकूमत को पकड़ो? क्यों पकड़ी? आपको किसी ने कहा था? आपको तो हमने बाद में भी धरने भी दिए कि छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ी? और हाँ जी। मजे लेने थे, अपने जो करप्शन की थी उसे छुपाना था, ये डीलें करनी थी। डीलें ना होती तो आज कैसे यहाँ पे होते? मुकाबला कौन करेगा? आप कर ही नहीं सकते, आप सच्चे होंगे तो करेंगे। पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं यही बहस रहती है बस। बस हमारा लीडर जब हुकूमत में होता है, पाकिस्तान में होता है, हुकूमत से बाहर जाता है तो बाहर क्यों भागता है? क्यों भागता है? और चोर तो तुसी जे बात ओए उन्होंने तो 2 रुपए रोटी पकाती है, तुसी पीता मेरा 2 रुपए रोटी ये इस वीडियो को चलाना है आपने, इस वीडियो को चलाना है। ये है शऊर, ये है शऊर। ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा, मेरे बुजुर्ग हैं, इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा। ये है शऊर हमारा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग हैं, मैं तो गाली नहीं दे सकता ना, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कायद वैसे ही आगे वाम होगी उसकी। जो गजते हैं वो बरसते नहीं है, क्योंकि इन्होंने चुप करके डील करके आ जाना है। ये गजने जो कि है ही नहीं, तो गजना क्या है? भाई गजे हुए हैं, आप पूरे लाहौर में देखें, गजे हुए हैं। उन्होंने मुकाबला है ही कोई नहीं, शेर का मुकाबला कोई नहीं है। बिल्कुल शेर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पेट में वट फिरता है तो लंदन से दवाई आती है, उसका मुकाबला कौन कर सकता है? वो कहता है कि मैंने सैकड़ों हॉस्पिटल दिए हैं, लेकिन अपने लिए एक डिस्पेंसरी भी नहीं बनाई, और भाई उसको को अपने इलाज के लिए तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बना ले। इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। ख़राब इस तरह से है कि गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, वोट किसको देना है ये मुअम्मा बना हुआ है।
कौन सी सियासी पार्टी बेहतरीन है? जमात इस्लामी की अगर मैं बात करता हूँ तो कदरे बेहतर निकल कर आई है तमाम तर सियासी पार्टी से, क्योंकि इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है, लोग सच्चे हैं, एटलीस्ट हक सच के ऊपर बात करते हैं। नून लीग के, पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स, क्या हासिल हुआ है हमें अब तक? कुछ भी नहीं। हम लोगों ने अपनी इज्जतों का सौदा करके, अपने पेटों का सौदा करके, अपने बच्चों के पेटों का, उनके मुस्तकबिल का सौदा करके इन लोगों को वोट्स दिए हैं। ज़रा सोचिएगा कि हम गलती आखिर कहाँ कर रहे हैं। ढेर सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान आरजे अरहम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।